السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے ایک کیلنڈر سینڈ کیا ہے، یہ دعوت اسلامی کی جانب سے جاری ہوا ہے، شعبہ فلکیات دعوت اسلامی بہاولپور۔ اس میں روزہ افطار کا ٹائم ہے 6:15۔ آج 4 تاریخ کا روزہ، یعنی کہ 14واں روزہ 4 مارچ 6:15:59، یعنی کہ 16 منٹ سمجھیں، کنسیڈر رکھیں۔ جبکہ بہاولپور کے کیلنڈرز میں 6:21 پہ روزہ افطار ہو رہا ہے۔ کل بھی یہی مسٹیک ہوئی ہے، ہم ایک جگہ افطار کرنے گئے، کسی نے کس ٹائم پہ کھولا، کسی نے کس ٹائم پہ کھولا، میں نے 6:15 پہ کھولا، یعنی کہ 6:15:20 پہ۔ اب سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا ٹائم بند کرنے میں لیٹ ہے، کھولنے میں جلدی ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اور بہاولپور کے جتنے بھی مضافات اور کیلنڈر ہیں اس کی ٹائمنگ اور ہے۔ مجھے بس یہ جاننا ہے کہ ہم روزہ کھولیں تو کس کے مطابق کھولیں، یہ کائنڈلی ڈیٹیل ہے تو بتا دیں آپ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اللہ پاک کی آپ پہ رحمت ہو۔ عرض یہ ہے کہ یہ شعبہ فلکیات ایک جو ہے نا ظاہری بات ہے کہ علم ہے، اور یہ ہر کسی کیلنڈر بنانے والے یا دیگر لوگ، ان لوگوں کو تھوڑی پتہ ہے، یہ لوگ اس کام کے ماہر تھوڑی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے، آپ ستاروں کو دے کر اور اپنا یہ اس کے مطابق اپنی گھڑی کو درست فرما لیا کرتے، اور 1 سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو یہ ایک علم ہے۔ اب الحمدللہ ڈیجیٹل ٹول، آپ بڑے بڑے ادارے دیکھیں، سسٹم دیکھیں، نظام دیکھیں، ہمارے پاکستان ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، ہمارا اگر سیکورٹی ادارے ہو گئے، ہر کوئی ڈیجیٹل ٹولز کی طرف آ رہا ہے اور اس کو اپنا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس کی طرف ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی شعبہ فلکیات ہمارا ایک مکمل ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو شرعی تقاضوں کے مطابق اس کی معلومات رکھتے ہوئے، یہ ہمارا لاکھوں لاکھ، یہ صرف بھاولپور کی نہیں ہے، اگر آپ ہماری پریئر ٹائمز اپلیکیشن دعوت اسلامی کی آپ انسٹال کریں، آپ دنیا کے کسی خطے میں ہوں، کونے میں ہوں، آپ کے پاس وہاں انٹرنیٹ کی سہولت ہو، آپ کی موجودہ لوکیشن کے مطابق آپ کو 5 وقت نمازوں کی ٹائمنگ الحمدللہ یہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے، یہ ہماری اپلیکیشن ہے، یہ آپ کو فراہم کرے گی۔ آپ کو 1 سیکنڈ کا ایشو ہوگا، فرق ہوگا، یہ بتائے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کیلنڈر بنانے والے لوگ ہیں، یہ اگر آپ دیکھیں مختلف مساجد میں جنتریاں جو ہے، دائمی جنتری لگی ہوتی ہے، وہ 20 سال پرانی ہے، 30 سال پرانی ہے، جو اس کے ماہر تھے انہوں نے اس کو اس وقت بنایا، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کے لیے وہ کارآمد ہوتی ہے۔ اچھا، وہ چل رہی ہوتی ہے، اس کے مطابق لوگ یہ سیر و افطار، دیگر نمازوں کے معاملات ماہ رمضان سے ہٹ کر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اس میں پوری ٹائمنگ، زوال کا وقت کب ہے، ٹھیک ہے، اور سورج کب طلوع ہو رہا ہے، کب غروب ہو رہا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ڈیجیٹل گھڑیوں کا سیٹ اپ بھی ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، اس میں بھی دیکھیں ڈیجیٹل گھڑی آٹو ٹائم لیتی ہے اس شہر کی لوکیشن کے مطابق۔ اچھا، ہمارے ہاں سسٹم یہ ہوتا ہے، یہ جو بنانے والے ہیں کیلنڈر، یہ 5 منٹ احتیاط کے ساتھ اس کو بنا دیتے ہیں۔ یہ کوئی ماہر لوگ تھوڑی بیٹھے ہیں، علماء کرام تھوڑی بیٹھے ہیں، یہ اس کو دیکھ کر بنانے والے تھوڑی ہیں۔ اگر آپ دائمی جنتری دیکھیں اس میں اور جو دعوت اسلامی کا ٹائم ہے، اس میں آپ کو کچھ سیکنڈ یا تھوڑا سا فرق نظر آئے گا منٹ کا۔ اچھا، اس میں بھی وہ جو اس کے مطابق کرے وہ بھی ٹھیک ہے، جو اس کے مطابق کرے وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی جنتری کے مطابق کر رہا ہوں۔ یہ جو احتیاطاً 5 منٹ آگے لے جاتے ہیں، احتیاطاً اتنے منٹ پہلے بند کر دیں، وہ احتیاط کے پیش نظر یہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، احتیاط کے پیش نظر بند کرنا تو سمجھ آتا ہے، کھولنا نہیں آتا۔ کھولنے کے بارے میں تو حکم ہے کہ جلدی کھولا جائے روزہ، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے حصے تعلق تھوڑی ہے کہ بھئی اس میں احتیاط کریں جی، اس کو لیٹ کھولیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو جنتریاں اٹھاتے ہیں، پھر 5 منٹ احتیاط کے ساتھ اس کو بنانے والے لوگ بیٹھے ہیں، پرنٹنگ پریس والے بیٹھے ہیں، تو یہ اس کے ماہر لوگ نہیں ہیں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، ڈیجیٹل ٹول جو ہیں اس کو استعمال کر رہی ہے۔ ہمارے باقاعدہ علماء کرام ہیں جو اس پراسس، اس کو دیکھنے والے، کرنے والے، اس علم کے جاننے والے۔ تو آپ بالکل بے فکر ہو کر روزہ کھولیں، کوئی ایشو والی بات نہیں ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، الحمدللہ۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें मसाला ये होता है, बाज़ औक़ात ना कैलेंडर जो है वो पुराने होते हैं, तो पुराने कैलेंडर्स में और हिसाब होता है, यानी कि वो पुरानी डेट वगैरह उनमें इंदराज होती है, तो उस एतबार से है। और कुछ में यूँ होता है कि 5 मिनट का ना वो एक्स्ट्रा जो है वो एहतियाती टाइम ऐड कर देते हैं। इफ्तार में बाज़ औक़ात इस तरह लोग ज़्यादा करते हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप किसी बुलंद इमारत पर खड़े हो जाएँ और सूरज को देख लें। जैसे ही सूरज गुरूब हो जाए आप इफ्तार कर सकते हैं। तो यही है, यही हदीस से साबित है। तो आप देख लीजिएगा 5 बज के जो ये 6 बज के 16 मिनट या 17 मिनट का जो टाइम है, उम्मीद है कि इसके ऊपर जो है वो सूरज गुरूब हो चुका होगा। ऐसा नहीं कि सूरज मौजूद होगा और फिर भी उन्होंने जो है वो रोज़ा ख़राब करने की नीयत से इस तरह गलत किया होगा, ऐसा नहीं है। तो इसको आप लाजमी देख लीजिएगा। बाज़ लोग ना एहतियाती वक्त उसमें ऐड करते हैं, 5 मिनट 4 मिनट, तो इस सबब से यूँ होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा अली भाई, इसमें यह है कि जो हमारे यहाँ पे कैलेंडर नॉर्मली शहरों में चल रहे हैं, बावलपुर हो गया या इवन हमारे पास यहाँ टोबर टेक्सिंग में भी यही इशू है। यहाँ पे जो कैलेंडर चल रहे हैं बेसिकली वो बने हुए हैं 50 साल पुराने। ठीक हो गया। 50 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी और अब की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो उस वक्त बनाए गए थे। अब जो कैलेंडर बने हैं दारुल इस्लामी ने बनाए हैं, ये जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक, जदीद जो औज़ार हैं उनके मुताबिक और आला हज़रत अलैहिर्रहमा की जो तहकीकात थी उनको साथ में मिलाकर जदीद टेक्नोलॉजी से ये जो उफ़ुक होता है सूरज के रोशनी की जगह, ठीक है, या आसमान की बुलंदी वगैरह, मैदानी इलाके की पस्ती हो गई, ये सारी चीज़ें ना ये चेक करते हैं फलकियात वाले। इन्होंने देखना होता है कि किस इलाके को उफ़ुक कौन सा पड़ता है, या बीच में दरख्तों का क्या सीन है, इमारात का, बिल्डिंग्स का क्या सीन है, कहाँ पे किस हिसाब से सूरज किस टाइम पे गुरूब हो रहा नहीं हो रहा, तो वो सारा कुछ देखते हैं। और ज़मीन की ऊंचाई, गहराई वगैरह सब कुछ उन्होंने नापना होता है, उसके मुताबिक वो देखते हैं। तो जदीद आलात के मुताबिक इन्होंने ये नया कैलेंडर बनाया है, तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक है पिछले कैलेंडरों से। ठीक हो गया। तो अगर कोई इसके मुताबिक खोलता है या रोज़ा रखता है दावत इस्लामी के जदीद कैलेंडर के मुताबिक, तो बिल्कुल ठीक है, उसका रोज़ा हो जाएगा, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ठीक हो गया। बाकी रही बात हमारे जो दूसरे इस्लामी भाई हैं जो पुराने कैलेंडर्स के मुताबिक रोज़ा रखते हैं, नॉर्मली शहरों में वही चल रहा है, तो उसके मुताबिक अगर कोई अमल करता है, रखता है, तो भी ठीक है, दुरुस्त है। ज़्यादा एहतियात उसी में है कि उसी के मुताबिक रखा जाए रोज़ा और खोला जाए। ठीक हो गया। चूँकि दारुल इस्लामी के लेटेस्ट कैलेंडर हैं, हर जगह पे अभी तक पहुँचे नहीं हैं, अवाम इससे जो है वो मुतनफ़्फ़िर होगी और मतलब ये है कि तनफ़्फ़ुर का शिकार होगी, शक शुबात में पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि हमारे इस्लामी भाई यहीं पे यहाँ जहाँ पर भी जाएँ तो वो सब इस्लामी भाइयों के साथ मिलकर ही रोज़ा खोलें। जो दीगर मतलब हमारे सुन्नी भाई खोलते हैं जिसके मुताबिक रोज़ा मसजिद में जिसके मुताबिक ऐलानात हो रहे थे, उसी के मुताबिक अवाम के अंदर रोज़ा जाकर खोलें। फॉर एग्ज़ाम्पल घर के अंदर अगर वो रोज़ा खोल रहे हैं तो घर के भी अफ़राद सारे दारुल इस्लामी से अगर मुंसलिक नहीं हैं तो भी एहतियात करें, सबके साथ ही रोज़ा खोलें। वरना घर के अंदर जो है बेटा जो है वो जदीद कैलेंडर के मुताबिक रोज़ा खोल रहा होगा, वालिद साहब कह रहे होंगे नहीं ऐलान होगा तो रोज़ा खोलना है, तो घर के अंदर भी जो है ना वो एक अजीब सा माहौल बनेगा। तो बेहतर यही है कि सबके साथ मिलकर ही रोज़ा खोला जाए और उसी के मुताबिक चला जाए। ऐसे काम से बचना चाहिए जिससे जो है वो तनफ़ीर अवाम का बाइस बने जो काम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हुज़ूर, दावत इस्लामी के जो माहिर फ़ल्कियात है ना, वो जो कैलेंडर तरतीब देते हैं वो एग्जैक्ट बिल्कुल सेकंड बाद सेकंड का हिसाब करके बनाते हैं। और जितने भी कैलेंडर आज तक बनते थे या बनते हैं वो 5 मिनट की एहतियात के साथ बनते हैं। जैसे रोज़ा बंद 5 मिनट पहले, रोज़ा खोलने का मामला 5-1 मिनट बाद का। तो वो इसलिए था कि भाई लोग जो है ना इसमें गफलत के मामलात ना कर दें, और इस हवाले से कहीं ऐसा ना हो कि देर से रोज़ा बंद करें फिर भी खाते रहें, क्योंकि लोगों की अजीब सी आदत होती है। और इफ्तार के हवाले से
بھی جو ہے نا وہ یہ کہ زیادہ وہ جلدی نہ کر کے افطار نہ کر لیں، کہیں اس ٹائم تک وہ ٹائم ہی نہ ہوا ہو. تو دعوت اسلامی نے جو ہے نا وہ ایگزیکٹ ٹائم دیا ہے. ایک بات. اچھا، اب دوسری بات یہ کہ اس حوالے سے بھی ماہر فلکیات جو ہے ہمارے وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ کھولنے کے حوالے سے دیے ہوئے ٹائم سے احتیاطاً 1-2 منٹ کا فرق ڈال لیا جائے. 5 کا نہ ڈالا جائے، 5 بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. 1 سے 2 منٹ بہت ہے. اور جو سحری کا وقت ہے روزہ بند کرنے کے حوالے سے، تو اس میں بھی 1 یا 2 منٹ پہلے بند کر لیا جائے دیے ہوئے ٹائم سے. ٹھیک ہے. اللہ پاک برکتوں سے نوازے آپ کو. کافی علمی ذوق ہے آپ کا. خوشی ہوئی مجھے آپ سے کا میسج سن کے. اس وقت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں اضافہ کرے. اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے اور بار بار مکہ اور مدینہ کی بعد اب حاضری آپ کا مقدر ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے علی رضا بھائی، یہ ڈیٹیل تو آپ کو علماء کرام ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. میں آپ کو جسٹ اتنا بتا سکتا ہوں، ٹیکنیکل حوالے سے میں آپ کو یہ گائیڈ کر سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں ہے. الحمدللہ آئی ٹی کی فیلڈ میں سب سے آگے آپ سمجھنے کے الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کی جو ہے ٹیم موجود ہے. تو ہم نے آلریڈی یہ یعنی سورج کس وقت طلوع ہو رہا ہے، کس وقت غروب ہو رہا ہے، اس کے جو احتیاطی جو منٹ وغیرہ سارے مکمل نکال کے ہی یہ کیلنڈر بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ آپ اس پہ کھولیں تو یہ دعوت اسلامی کی طرف سے ہی جاری ہوا ہے. یعنی آپ کسی کو فورس نہ کریں، دوسروں کو فورس نہ کریں، لیکن اگر آپ اس ٹائم کے مطابق کھولتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ اس ٹائم کے مطابق کریں تو انشاءاللہ آپ کا روزہ ہو جائے گا. پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ احتیاطی تدابیر کے جو ٹائم ہوتے ہیں وہ نکال کے سورج طلوع غروب ہر چیز کو دیکھ کے اس کے بعد جو ہے یہ کیلنڈر ڈیزائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ماشاءاللہ جدید ٹیکنالوجی سے ہی یہ بنایا گیا ہے کیلنڈر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہم نے سمجھا ہے نا، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا تقریباً 18 لاکھ مقام پر 28 لاکھ مقام پر دعوت اسلامی کا جو نظام بنا ہوا نا، تو دعوت اسلامی کا صحیح اور یہ جو ہے نا ہمارا دیگر سنی حضرات کا یہ بھی صحیح ہے، غلط یہ بھی نہیں ہے. اب جہاں کوئی اسلامی بھائی یہاں کا فتنے کا معاملہ نہ ہو تو بے شک دعوت اسلامی کے ٹائم پر کھول دیا جائے. فتنے کا معاملہ ہو تو وہاں وہی ٹائم سے کھولا جائے. وہ ٹائم بھی اتنا اگر 5 منٹ 3-4 منٹ 5 منٹ لیٹ ہوتا نا، یہ لیٹ کے حکم میں نہیں ہے، جو تاخیر کا معاملہ ہے نا اس میں نہیں ہے. یہ سمجھے دعوت اسلامی صاحب کہ جدید طریقے سے ان کو دنیا بھر کا یہ جو ایک بنایا ہے یہ درست ہے. اور جو وہی کرتے ہیں وہی آپ جو اہل سنت کا چلے اس پر چلیں، احتیاط اس میں ہی صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ جو دعوت اسلامی کا کیلنڈر ہے یہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے مطابق جو ہمارا دعوت اسلامی کا فلکیات کا شعبہ ہے انہوں نے بالکل اس کے مطابق اس کو جاری کیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ افطاری میں جلدی کرو. تو اس حوالے سے بھی اس میں اگر دیکھا جائے تو اس پہلو سے بھی یہ بہتر ہے کہ اب اس میں بھی احتیاط بھی شامل ہے. جو عام ہمارے محکمہ موسمیات کا جو ہے نا غروب کا ٹائم، اس کے غروب کے ٹائم میں اور اس میں 2 منٹ کا احتیاط شامل ہے اس کیلنڈر میں. یعنی اس ٹائم سے بھی 2 منٹ بعد میں یعنی کہ یہ بنتا ہے ٹائم. تو اس طرح یہ 2 منٹ کا احتیاط اس میں شامل ہے. یعنی کہ احتیاط شامل نہیں ہے، احتیاط بھی شامل ہے اور اس میں جلدی کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. تو اس لیے اس کیلنڈر کو ایک احسن انداز میں ترتیب دیا گیا ہے. اور سحری میں بھی 2 منٹ کا احتیاط موجود ہے. اور 2 منٹ کا احتیاط میرے خیال میں آج کے دور میں کافی ہے. ترقی یافتہ دور ہے، گھڑیاں ایکوریٹ ہوتی ہیں، سیٹ ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ گھڑیاں خراب ہوتی ہیں، گھڑیاں سیٹ ہوتی ہیں. پھر ہر کسی کی جیب میں موبائل ہوتا ہے، موبائل پہ ٹائم بھی چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اب لمبا احتیاط ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ دعوت اسلامی نے کیلنڈر جاری کیا ہے. تو یہ کیلنڈر بالکل درست ہے اور اسی کے مطابق ہی افطاری کی جائے.
जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब दूसरी रही बात उन कैलेंडरों की जो यानी कि शहर में आमतौर पे मरोजा चल रहे हैं बहावलपुर में, वो कैलेंडर आज से कोई तकरीबन कोई 30-35 साल पहले की तहकीक थी, उसके मुताबिक वो चल रहे हैं और उसी पर ही अभी तक वो चला रहे हैं। हालांकि इतने सालों में तहकीक में फ़र्क पड़ जाता है। तो अब अगर जदीद तहकीक जिन्होंने भी की है ना, उन्होंने इस कैलेंडर को, ये जो अभी हमारे शहर में चल रहा है, इफ्तार के वक्त को उन्होंने मुस्तरद किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हबीबुल्लाह भाई, इसके अंदर ये है कि हमारा कैलेंडर अल्हम्दुलिल्लाह माहिरीन का तैयार शुदा है। बाकी जो जितना भी कैलेंडर्स का अगर कोई इससे मुवाजना कर रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। माहिरीन के कैलेंडर से भी हमारे कैलेंडर का फ़र्क आ सकता है, उसकी मैं लॉजिक फिर बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि कैलेंडर्स आमतौर पर माहिरीन के तैयार करदा नहीं होते। तकरीबन शहरों के देखे गए हैं जो एक अरसे से किसी दूसरे शहर का फ़र्क लेकर तैयार किए गए कैलेंडर। और जैसे फ़र्ज़ करें बहावलपुर का है तो इंडिया के किसी शहर को उठाया और उसमें 4 मिनट या 5 मिनट आगे किए, ठीक है, और वो कैलेंडर बहावलपुर का तैयार हो गया। या फिर इस तरह से 15 मिनट आगे किए वगैरह, जितने भी इन्होंने इनको महसूस हुआ। हालांकि पूरा साल बराबर फ़र्क नहीं रहता, फ़र्क तब्दील होता रहता है। अब अगली चीज़ मैं बयान करता हूँ कि इस कैलेंडर को अगर आप कोई गलत कहे तो उसके लिए फिर यही है कि वो किसी भी दिन सही घड़ी लेकर बैठ जाएं। अगर इस पर गुरूब ना हो हमारे कैलेंडर पर तो फिर हम गलती पर हैं, जाहिर सी बात है। इसका हम यही दलील दे सकते हैं, बहावलपुर की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग हो उसके ऊपर वो बैठ जाएं और किसी छत पर, और फिर उसके बाद वो सूर्य का गुरूब देखना शुरू करें और घड़ी उनकी ऑटोमेटिक दुरुस्त कर दें। यानी जो मोबाइल में ऑटो टाइम होता है, ताकि वो गूगल से मुकम्मल सेट हो जाए उसकी घड़ी का टाइम, सेकंड से सेकंड मिल जाते हैं जब ऑटो सेट करते हैं। तो उस पर ये है कि फिर वो टाइम देखेंगे इंशाल्लाह। और ये कि उनको जब सूरज का जो ग्रुप का टाइम हमारे कैलेंडर पर लिखा है, इस टाइम पर उनको सूरज की टिकिया बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। चाहे ये तो है खैर 1 महीने का, इस तरह अगर पूरे साल का भी मिलेगा ना जो हमारा दाऊद इस्लामी कैलेंडर, तो उसमें इंशाल्लाह आपको सूर्य की टिकिया में नज़र नहीं आएगी। अब चीज़ आती है कि फ़र्क क्यों आता है। एक तो ये कि वो मैंने जो ऊपर पहले पीछे वजह बयान की कि माहिरीन के तैयार करदा नहीं होते, इस वजह से फ़र्क आता रहता है। एक और चीज़ होती है जो हमारे बाकायदा बुज़ुर्गों के भी तैयार शुदा कैलेंडर है ना, तो उनसे भी हमारे कैलेंडर का कुछ फ़र्क आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता जितना ये बयान फरमा रहे हैं। तो उसका फ़र्क की वजह ये होती है कि हम कैलेंडर गांव ब गांव तक के भी दे रहे हैं और शहर का फैलाव का लिहाज रख के हम कैलेंडर तैयार करते हैं। और जदीद टेक्नोलॉजी जिस तरह के अभी आजकल गूगल अर्थ वगैरह सैटेलाइट्स का निज़ाम आ गया, देख सकते हैं कि यहाँ पर सूरज किस पोजीशन में चल रहा है और ये इसका अर्ज़ बलद तूले बलद, जिसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, तो वो क्या है। अब उसके बाद फिर अब जो एहतियात बननी चाहिए उतनी एहतियात इसमें शामिल कर दी जाती है, पूरे शहर का रोज़ा हो जाता है उस एहतियात पर। लेकिन बुज़ुर्गों के उस दौर को अगर हम देखते हैं तो उस दौर के अंदर चूँकि अर्ज़तूल एक तो हर शहर का अज खुद गूगल वगैरह से आप निकाल नहीं सकते थे क्योंकि नेट का दौर नहीं था। अब बरतानिया से जो है अर्ज़ बलद तूले बलद मुख्तलिफ शहरों के लिखे हुए आते थे। अब उस बेस पर अब क्या होता था कि वो उन्होंने शहर के किस कोने का अर्ज़तूल लिया है वो कन्फर्म नहीं होता था, यानी बताया नहीं होता था, मतलब बताया होता था कि फ़लाँ शहर का है। तो इस वजह से हमारे बुज़ुर्गों ने फिर एहतियात का दामन पकड़ा और उसके अंदर ये कि 5-5 मिनट एहतियात डाल दी अपने कैलेंडरों में। ये उस दौर का तकाजा था, ज़ाहिर नहीं डालते तो फिर शक में रह जाता कि नमाज रोज़ा ख़तरे में है, जिस तरह चाहे आला हज़रत ही क्यों नहीं है। तो इस बिना पर यह कि उन कैलेंडरों से भी हमारा फ़र्क आ सकता है, लेकिन वो 2-3 मिनट का आएगा, ये इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। वजह ये 2-3 मिनट का आने की कि 5 मिनट तो बुज़ुर्गों ने एहतियात डाली, लेकिन 1 मिनट 1.5 मिनट और कहीं पर हमने 2 मिनट तक की भी एहतियात अपने कैलेंडर में शामिल की गई है। तो लिहाजा इस वजह से तकरीबन 2-3 मिनट का बुजुर्गों से फ़र्क आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आएगा जितना ये यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर, ये सवाल है ये है कि दावत इस्लामी के जो कैलेंडर है 100% दुरुस्त हैं और इनमें एहतियाती टाइम भी शामिल है ना। तो जो दावत इस्लामी के कैलेंडर हैं ये जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक उलमा फ़लकियात की ज़ेर निगरानी तैयार होते हैं ना। बाकी जो दूसरे कैलेंडर चल रहे हैं वो उलमा की ज़ेर निगरानी नहीं होते, वो तो फ़ोटो कापी वालों के पास कोई भी जाता है वो कैलेंडर निकाल के दे देते हैं ना। तो दावत इस्लामी वाला कैलेंडर ही दुरुस्त है, उसी के मुताबिक ही सारे इफ्तार की तरकीब की जाए।
बाकी रही वो बात कि जहाँ जमे गफ़ीर हो, जहाँ फितने का डर हो, तो वहाँ पर फिर एहतियात कर लीजिए, 2-4 मिनट सब्र कर लिया जाए ना। घर में हूँ, अकेले हूँ, मस्जिद में पूरे ही वो बात मानने वाले लोग हैं, फितना फसाद का डर नहीं है, तो फिर दावत इस्लामी के कैलेंडर को फॉलो ही किया जाए। इसी में अगर फितने का डर हो तो फिर रूटीन के जो कैलेंडर चल रहे हैं ना, उनको देख लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। इसमें ना वसात सारी दे दी गई है प्यारे भाई कि 26 सालों बाद ना कैलेंडर चेंज होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो भावलपुर में कैलेंडर चल रहे हैं ना, वो कोई 50, 60 साल, 70 साल पुराने मेरे ख्याल में चल रहे हैं। तो इनमें तब्दीली आनी चाहिए ना। और तो हमने यही डिसाइड किया कि रमज़ान मुबारक के बाद ना उलमाए किराम की बारगाह में ना हाजिर होते हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, उनके पास हम हाजिर होकर ना उनको अर्ज़ करते हैं कि यार इनके बारे से ना कोई उनका कोई प्रॉपर हल निकाला जाए, इसका कोई इशू जो बना है सोल्व किया जाए और कैलेंडर नए लगवाए जाएँ हर मस्जिदों में ना, और बाकायदा तय किया जाए कि 2026 में अब लगा रहे हैं तो 2050 तक ये वैलिड होंगे, उसके बाद दोबारा चेंजिंग होगी। तो इस तरह का निज़ाम बनाया जाए और एहतियात भी वाज़ेह की जाए कि कितने मिनट की होती है। 5-5 मिनट की एहतियात डाल देते हैं तो ये भी दुरुस्त नहीं है। 1 मिनट की, आधा मिनट, 2 मिनट, इतनी तक की एहतियात में आती है। अस्सलाम वालेकुम। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह इरशाद फरमाया कि जब सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ा अफ्तार हो जाता है। तो आप किसी दिन ऐसे करें कि थोड़ी सी बाहर जाएं, जैसे आप कल जा रहे हैं तो ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पर आप सूरज गुरूब होता देख सकें, तो उसको अपनी आँखों से गुरूब होता देखें और रोज़ा अफ्तार कर लें। और फिर उसके बाद कैलेंडर के मुताबिक देख लें कि कैलेंडर में टाइम सही लिखा हुआ है या नहीं। जो टाइम सही होगा वो सामने आ जाएगा। अल्लाह आपको बरकत दे। बारकल्लाह फीकुम। जी बिल्कुल ऐसी ही है। बेहतर तो यही है कि सब बराबर एक वक्त में रोज़ा रखो लें, लेकिन बहुत सी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं वो पूरी नहीं होती या उनके पूरा होने में थोड़ा टाइम लगता है। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। जी हमारा जो अमला है ना, तो वो अजान के ऊपर खोलता है। हमारे अमले के अंदर 2 किस्म के लोग शामिल हैं, एक अहल हदीस और एक गैर अहल हदीस। जो हमारे हदीस साथी हैं वो इसी के ऊपर करते हैं। जो गैर अहल हदीस हैं अगर वो एहतियात करते हैं तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ तरगीब दे सकते हैं और उनको सुन्नत के मुताबिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। किसी को मजबूर करके उसके ऊपर अमल दरामद कराना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो हम उनकी डे 1 से, बल्कि रमज़ान से की शुरू होने से पहले हमारे सेशन चले हैं बाकायदा दुरूस के अंदर। हमने बहुत सारी बातें उनको रमज़ान के हवाले से बताई हैं, वक्तन फ़वक्तन बताते भी रहते हैं। लेकिन चूँकि कुछ लोगों के जहन के अंदर अपनी फ़िक़ा और अपने जो कंसेप्ट होते हैं वो रासिख़ होते हैं, वो इसके ऊपर नहीं हलते, तो हमें भी ज़रूरत नहीं है उनको मजबूर करने की। ठीक है जी। बाकी हमारा जो अमला है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी कैलेंडर के मुताबिक करता है। और कैलेंडर के जो टाइम है हमने अपनी तरफ से अख़ज़ नहीं किया हुआ, हमने महकमा मौसमियात भावलपुर से लिया हुआ है, जो गवर्नमेंट का एक इदारा है जो बाकायदा फ़ल्कियात के निज़ाम के साथ वाबस्ता है। उन्होंने जो टाइम दिया है और सूरज के एक्यूरेट जो टाइम है उसी के मुताबिक ये लिखा हुआ है। ठीक है जी। बारकल्लाह। मेरा नाम इमरान सल्फ़ी है।